Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today Walaikum salam. we are going to start the chapter number 6, which is normalization of database tables. It is an extremely important topic, and it was supposed to be covered in your first semester's preliminary course of introduction databases. But as I have heard that this topic was not covered in the previous semester, so we have to cover this topic from the beginning, from the foundation steps. Okay, so please be focused on this topic. This is extremely important. Whenever you go for any interview regarding databases, the interviewer always asks you about the normalization. Whenever you have a written test uh, regarding the databases, or any test regarding the IT subjects, there are always questions in from databases from this chapter. Okay, so be focused and ask any question if you have. So in this chapter, we are going to cover the normalization, and there are several normal forms. First normal form 1NF, second normal form, third normal form, BCNF, 4NF, even it goes to 5NF and 6NF as well. But they are like redundant normal forms, so we do not need to go even practical environment up to the even to the 4NF. Normally up to 3NF is sufficient for the normal working database that we require to develop. So how normal forms can be transformed from lower normal forms to the higher normal forms? No, lower normal forms are like first NF, and higher normal form will be like it goes from second NF, third NF until 4NF. And how normalization and ER modeling stands for entity relationship modeling, are used concurrently to produce a good database design, and how some systems require denormalization to generate information efficiently. As I've said in the previous chapter regarding the functional dependency, that functional dependency is the foundation step for the normalization, because with the functional dependency we determine the dependencies between different attributes, and those at dependencies help us out to actually find out the primary key of the relation. So this is also the foundation step of the normalization. So normalization is the process of evaluating and correcting table structures to minimize data redundancies. It means in order to reduce data anomalies कि हमें जो है डेटाबेस के जो टेबल्स हैं उसकी स्ट्रक्चर को में जो रिडंडेंसी है, वी नीड टू रिड्यूस दोज रिडंडेंसीज. रिडंडेंसीज का मतलब क्या है? मींस when we have a large quantity of data that is repeated unnecessarily. So that repetition of data that is being unnecessarily increasing at the lower stage. When you have smaller database, we have a very large, we have a low volume of the data. In that case, we don't find any kind of problem running the databases. But if the data grows larger, it means the redundancy will also grow larger. And with the large redundancies, the performance of database will eventually reduce with the passage of the time. So in order to remove the redundancies and remove the data anomalies, we need to perform the normalization. It can be said why we need to perform the normalization. अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, so you need to answer that question कि हमें data redundancies remove करनी है, we need to reduce data anomalies. अब data anomalies क्या है? We will see in the coming slides. Normalization from second NF is better than the first NF, and third NF is better than the second NF. So second normal form is better than first NF, and third normal form is better than second NF because it will eventually increase the efficiency of the database. For most business databases design purposes, 3NF is as high as we need to go in the normalization process. जैसा कि मैंने बोला कि 3NF जो है that is sufficient to go at much higher stage जहाँ पे हमें stop करना चाहिए.
highest level of normalization is not always most desirable. Means that whenever you go from 3NF to beyond BCNF, 4NF, the highest level of normalization is not very desirable, because वो रिडंडेंसी समटाइम्स रिमूव करते करते हमारी डेटाबेस स्ट्रक्चर है वो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और उसमें हमारा फिर ओवरहेड जो है वो बढ़ जाता है। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाई वी नीड टू परफॉर्म द रीनॉर्मलाइजेशन एंड व्हाई वी डू नॉट नीड टू गो टू द हायर लेवल ऑफ normalization. So normalization is necessary. If you do not do it, then the overall integrity of the data stored in the database will eventually degrade. Specifically, this is due to data anomalies. Anomaly means something that is not good, or anomaly means something that is a problem. Anomalies are caused when there's too much redundancy in the database's information. Anomalies हो जाती हैं जब हमारे redundancy बहुत ज़्यादा है. The normalization process was created largely in order to reduce the negative effects of creating tables that will introduce anomalies into the databases. अब anomalies को हम देखते हैं कि कौन सी anomalies है जिनको जो है हमें remove करना पड़ता है, या बल्कि वो remove हो जाती हैं जैसे normalization process हम आगे बढ़ते जाएं. In this chapter we are going to consider an example of a company building a project where we have project information, where we have a client information, where uh, charges clients by billing hours spent on each contract. So hourly billing rate is dependent on employee's position, and periodically report is generated that contains information displayed in table. ये एक छोटा सा टेबल है, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा हो, इस टेबल के अंदर we have a project number, we have a project name, we have an employee number, we have an employee name, we have a job class, and we have a charge hour, and we have hours. These are the employees that are working on this project Evergreen, and this project and this project and this project. This is their job class. This is their charge hour. Means this electrical engineer charges $84.50 per hour, and this is the number of hours that particular engineer has worked on this project. तो ये जो है एक टेबुलर फॉर्मेट में रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिपोर्ट है, जो कि हमें इवेंचुअली चाहिए उस डेटाबेसिस से, या हम जनरेट कर रहे हैं डेटाबेसिस के थ्रू. अब इसमें मुख्तलिफ किस्म की आपको रिपीटेशन दिख रही होगी. फॉर एग्जाम्पल, इट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई विच इज द प्राइमरी की. इसमें प्राइमरी की हमें पता ही नहीं चल रहा, बिकॉज देयर आर एम्प्टी रोज. यहाँ पे जो जून ई आरबुक साहब जो हैं, he might be available in another project as well. He is not available in another project, but if you are considering John G News, John G News employee number 101, who is working in Evergreen project, is also working in Starlight project as a database engineer. So there's a data of John G News is repeating, employee name. There's a job class data is also repeating, and there are empty rows. So there's no a particular key that is uniquely identify a particular row. So what data anomalies can be found in this tabular format of the data? There are three data anomalies: update anomalies, insertion anomalies, and deletion anomalies. So what is an update anomaly? Update anomaly happen when the person charged with the task of keeping all the records current and accurate is asked, for example, to change an employee's job class due to a promotion. कि हमें एक प्रोजेक्ट के अंदर एक एम्प्लॉय की जो है कोई जॉब क्लास जो है वो अपडेट करनी है. If the data is stored redundantly in the same table and the person misses any of them, then there will be multiple titles associated with the employee. Means he is working in the multiple projects. So हमें यहाँ पे modify करना है, हमें यहाँ पे modify करना है. We need to modify over here, or we need to modify over here. It will create an update, क्योंकि उसका promotion जो है वो किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर हो रहा है, नॉट इन ऑल द प्रोजेक्ट्स. इन दैट केस इट विल क्रिएट एन अपडेट अनोमली. हमें अपडेट करना कहाँ पे? Insertion anomaly happens when inserting vital data into the database is not possible because other data is not already there. For example, if a new project is to be added and currently there's no employee associated with it, it cannot be added. In this table, अगर हमें कोई एक और प्रोजेक्ट ऐड करना है,
अब उस प्रोजेक्ट में हमें एम्प्लॉय कोई भी अभी तक हमने असाइन नहीं किया है, तो हम उस प्रोजेक्ट को ऐड कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इन एवरी प्रोजेक्ट देयर इज एन एम्प्लॉय एसोसिएटेड विद इट। तो अगर हमें प्रोजेक्ट ऐड करना है तो उसको एम्प्लॉय भी हमें असाइन करना है। विदाउट एन एनी एटलीस्ट अ सिंगल एम्प्लॉय वी कैन नॉट ऐड द प्रोजेक्ट। लेकिन अभी हमने कोई एम्प्लॉय असाइन किया ही नहीं है, सो वी कैन नॉट एंटर दैट रो। सो इट विल क्रिएट एन इंसर्शन anomaly. We cannot add a row into the table because it is dependent on other data which is really don't have. The deletion anomaly. It happens when the deletion of unwanted information causes desired information to be deleted as well. For example, if an employee needs to be deleted from a project, from which project it can be deleted? If you want to delete the John G News of database engineer from evergreen project, अगर हम delete की query चलाएं तो वो यहाँ से भी delete हो जाएगा, हमारा यहाँ से भी delete हो जाएगा। ठीक है? So it will create the deletion anomaly कि हमें वो कहाँ से delete करना है per account. So the need for normalization is the structure of data set in figure does not handle data very well. और यहाँ पे एक और चीज हमने नोट की कि यहाँ पे डेटा जो है जॉब क्लास का, ईएमपी नेम का, और यहाँ पे जो है डेटा रिपीट बहुत हो रहा है। इस रिपीटेशन ऑफ डेटा को वी कैन कॉल इट the redundant data or redundancy. Abhi, in this tabular format we have a very small volume of data, so over here we cannot clearly see कि कितना redundant हो रहा है, या थोड़ा सा तो redundant कॉपी हो रहा है, थोड़ा सा रिपीट हो रहा है। लेकिन as the data grows very large, तो ये redundancy जो हमारे लिए सर्चिंग के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, and it will also create a problem for the storage of the data. So the structure of data set in figure does not handle data very well. The table structure appears to work. भाई रिपोर्ट हम जनरेट कर पा रहे हैं, रिपोर्ट जनरेटेड विद ईज। अनफॉर्चुनेटली रिपोर्ट में yield different results depending on what data anomaly has occurred। अगर हम कोई क्वेरी चलाएं और उसने कोई ऐसा डेटा अपडेट करना कर दिया जो हम नहीं चाहें, तो it will yield a wrong data in the report format. So each table represents a single subject in the normalization process. हम नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में क्या होगा कि हम हर टेबल जो है वो बेसिकली एक सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। एक सब्जेक्ट को मतलब कि अगर यहाँ पे प्रोजेक्ट का डेटा भी है, यहाँ पे एम्प्लॉय का डेटा भी है, ये दोनों साथ में डेटा रखे हुए, हम कोशिश करेंगे नॉर्मलाइजेशन के अंदर कि एक टेबल ऐसा हो जो सिर्फ प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन को कंटेन करे, एक जो है टेबल ऐसा हो जो सिर्फ एम्प्लॉय के टेबल को कंटेन करे, ताकि वो सब्जेक्ट अलग अलग। तो जो इनकी आपस में लिंक है, दैट लिंक नीड टू बी फॉर्मेट combined into the another table. No data item will be unnecessarily stored in more than one table. ऐसा कोई डेटा आइटम हम उसको रिपीटेडली जो है एक से ज्यादा टेबल्स के अंदर रिपीट नहीं करेंगे। And all the attributes in a table are dependent on the primary key. And all the attributes जो है यूनिकली आइडेंटिफाई होंगे एक प्राइमरी की के थ्रू। ये जो है पर्पस है हमारा नॉर्मलाइजेशन का। So the first normal form, this is a cheat table. चीट शीट जिसको कहा जाता है कि अगर हमें नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस को याद नहीं है तो एक छोटा सा टेबल हम साथ में लेके जाएं, सो इट विल हेल्प अस आउट क्विकली कि भाई हमें इन व्हिच नॉर्मल फॉर्म व्हिच काइंड ऑफ टास्क वी नीड टू परफॉर्म। फॉर एग्जांपल इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म हमारा डेटा जो है टेबल फॉर्मेट में होना चाहिए जिसमें नो रिपीटेटिंग ग्रुप्स होने चाहिए एंड प्राइमरी की नीड टू बी आइडेंटिफाइड। In the second normal form, the steps are that it needs to be in first normal form firstly, and there are no partial dependencies. If there are partial dependencies, we need to remove those partial dependencies in order to convert it into the second normal form. And in order to convert into the third normal form, it should be in second normal form, and there are no transitive dependencies. तो partial dependencies and transitive dependencies जो है हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम पढ़ चुके हैं, इसमें हम थोड़ा सा और रिवाइज करेंगे जो है नॉर्मल नॉर्मल प्रोसेस के अंदर। BCNF, every determinant is a candidate key, is a special case of 3NF। हर डिटर्मिनेंट जो है वो कैंडिडेट की हो सकता है, तो उसको हम चेंज करना पड़ेगा ताकि वो BCNF के अंदर कन्वर्ट कर दे। And there's a fourth normal form that it must be in 3NF and there are no independent multi-valued dependencies. Until today, we did not learn about the multi-valued dependencies. तो फोर्थ नंबर फॉर्म के अंदर जो है वो 3NF में होना जरूरी है और देयर आर नो मल्टीपल डिपेंडेंसीज, वो मल्टीपल डिपेंडेंसीज नहीं होनी चाहिए। इफ देयर आर, वी नीड टू रिमूव दोस मल्टीपल डिपेंडेंसीज।
today's lecture is more consisting of converting from first normal form, second normal form, and third normal form. In the next lecture, we'll be cover about multiple dependencies and the fourth normal form. Okay, guys. So, if there any question, तो आप पूछ सकते हैं. Otherwise, हम जो है conversion जो है वो start करें. Question तो नहीं है. चलें ठीक है बेटा, शुरू करें. So simple that the report that we have seen in the previous slides, that we need to apply the normalization process on the tabular format report and convert it into the first normal form, then second normal form, and then third normal form. So in order to convert it into the first normal form, we need to check if there are repeated groups. It derives its name from the fact that a group of multiple entries of same type can exist for any single key attribute occurrences. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक सिंगल टाइप ऑफ अकरेंस के लिए यहाँ पे मल्टीपल एंट्रीज जो है वो यहाँ पे पड़ी हुई है. फॉर एग्जाम्पल एवरग्रीन प्रोजेक्ट के लिए हमारे पास मल्टीपल एंट्रीज है. हम ये कहेंगे कि यहाँ से 15 और एवरग्रीन ये पूरे का पूरा एक ग्रुप है. दिस ऑल एम्प्लॉयज बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर एंटिटी. It derives its name from the fact that a group of multiple entries जो कि यहाँ पे एम्प्लॉयज की हैं of the same type can exist for any single key attribute occurrence, जो कि single key attribute जो है प्रोजेक्ट नेम या प्रोजेक्ट नंबर है. ठीक है. रिलेशनल टेबल मस्ट नॉट कंटेन रिपीटेटिंग ग्रुप्स. तो टेबल के अंदर ये रिपीटेटिंग ग्रुप्स जो है वो नहीं होने चाहिए. हमें उनको रिमूव करना पड़ेगा. Normalizing table structure will reduce the data redundancies, and normalization is a three-step procedure. The first step of first normal form is eliminate the repeating groups. The first step is eliminate the repeating groups, means we need to put the atomic values for each row. There should not be any null in the kind of a key that can uniquely identify a row. So present data in tabular format where each cell has a single value and there are no repeating groups, means in order to put the atomic values, in order to eliminate the repeating groups, we need to put a single value in each cell. Eliminate repeating groups, eliminate nulls by making sure that each repeating group attribute contains an appropriate data value. अब यहाँ पे हमें जो 15 है और एवरग्रीन है, यहाँ पे नल लिखा हुआ है. इसका मतलब ये कि ये भी इसी प्रोजेक्ट के अंदर है, उसका आईडी भी है. ये एम्प्लॉय भी इसी प्रोजेक्ट के अंदर है, इसका आईडी भी है. तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमें जो है वी नीड टू रिमूव दोज नल्स, और यहाँ पे जो वैल्यू यही हमें दोबारा से सेल के अंदर पुट करनी है ताकि हर सेल में एक एटॉमिक वैल्यू जो है वो अवेलेबल हो. तो द फर्स्ट स्टेप इज एक्सट्रीमली सिंपल. व्हाट वी नीड टू डू, eliminate repeating groups. We need to just copy and paste this project name and project name data into every cell corresponding into the employee. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एवरग्रीन का जो डेटा है दैट इज नाउ पुट into the every cell corresponding to every employee. The first step of eliminating repeating groups is done, is completed. We need to follow the same process for each repeating groups into the table. तो यहाँ पे अंबर वेव एक प्रोजेक्ट है जिसकी जो 4 रोज थी, फर्स्ट में अवेलेबल थी, वहां पे हमने ये चीज पुट कर दी. यहाँ पे अवेलेबल थी, यहाँ पे हमने पुट कर दी इंस्टॉल आईडी के लिए. वी पुट ऑल द रोज. The first step of eliminating repeating groups is completed by putting the atomic values in each cell where we had a null value. Let's go into the step number 2. So this is the step number 2 of converting only in the first normal form. ये सिर्फ अभी तक हम पहले normal form में, and it is extremely simple. बहुत मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान है. Identify all dependencies. And how do we identify the all dependencies? Dependencies can be depicted with the help of a diagram. Means जो हमने फंक्शनल डिपेंडेंसीज फाइंड आउट की थी, उन फंक्शनल डिपेंडेंसीज के थ्रू हमें डिपेंडेंसी डायग्राम जो है बनाना पड़ेगा. फंक्शनल डिपेंडेंसीज क्या आती है कि हमें एक एट्रीब्यूट्स के दरमियान डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने हैं और डिपेंडेंस फाइंड आउट करने हैं. और उसके बाद हमें डिपेंडेंसी डायग्राम बनाना था ताकि हम पता कर सकें कौन से एट्रीब्यूट्स किस एट्रीब्यूट पे डिपेंडेंट है. So what dependency diagram does for us? It depicts all the dependencies found within given table structure.
is helpful in getting bird's eye view of all the relationships among tables attributes, makes it less likely that we'll overlook an important dependency. तो जो ऊपर जो हमारे पास एक रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट में रिपीटेटिंग ग्रुप्स खत्म करने के बाद हम अगर डिपेंडेंसी डायग्राम बनाए, तो दिस कैन बी द डिपेंडेंसी डायग्राम वेयर वी कैन से दैट वी हैव अ प्रोजेक्ट नेम, employee name, job class, charge hour, and hours. So the employee number can determine employee name. It can also determine the job class, and it can also determine the charge hour, how much money it charges. Project number determines the employee number. Oh, sorry. Project number determines the project name, and finally the hours. It is dependent in the combination of employee number and project number together. कि हमें जो है प्रोजेक्ट नंबर और एम्प्लॉय नंबर से दोनों को मिला के हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि अवर्स जो है वो दोनों इसके कॉम्बिनेशन से हमें पता चल रहा है। तो जॉब क्लास डिटरमाइन कर सकता है चार्ज आवर को। इस चीज को ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को पार्शियल डिपेंडेंसी को फिलहाल छोड़ दें। सिर्फ हम ये चेक करना चाह रहे हैं डिपेंडेंसी डायग्राम में कि कौन से एट्रीब्यूट्स इस पर डिपेंडेंट है और कौन से यहाँ पे डिटरमिनेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि एम्प्लॉय नंबर जो है वो इन तीन चीजों को डिटरमाइन कर रहा है। प्रोजेक्ट नंबर जो है इस प्रोजेक्ट नंबर को नेम को डिटरमाइन कर रहा है, और अवर्स जो है एम्प्लॉय नंबर और प्रोजेक्ट नंबर को डिटरमाइन कर रहा है। दिस कैन बी से अदर डिपेंडेंसी डायग्राम। अब इस डिपेंडेंसी डायग्राम में हमें ये पता चल रहा है कि डिपेंडेंसी डायग्राम में दैट सिंगल एट्रीब्यूट कैन नॉट बी द डिटरमिनेंट ऑफ दिस टेबल बिकॉज वी हैव a different set of attributes that are being determined by the different set of attributes. तो in that scenario हमें ये पता चल सकता है कि इसमें प्राइमरी की कौन सी हो सकती है। तो डिपेंडेंसी डायग्राम से हमें ये पता चल रहा है कि कौन से एट्रीब्यूट किस पे डिपेंडेंट है। And the third step is identify the primary key. So primary key must uniquely identify the attribute value and the new key must be composed. अगर हमारे पास कोई इस टेबल के अंदर एक ही एट्रीब्यूट होता जो कि एक पूरे टेबल के एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर रहा होता, तो हम ये कहते हैं कि भाई दिस इज अवर प्राइमरी की, इट uniquely identifies all the rows, oh sorry, all the attributes. लेकिन in our scenario our primary key can be said as the composite key. कंपोजिट क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय नंबर और प्रोजेक्ट नंबर दोनों साथ में मिलकर सारे टेबल के एट्रीब्यूट्स को डिटरमाइन कर रहे हैं। ठीक है, so we can say that our primary key is composed of true attributes, and combine those true attributes we can find out any row in this table that is available in this table. So there were three steps. First normal form describes tabular format in which all key attributes are defined. There are no repeating groups. Key attributes means primary key इसमें determine होगी, रिपीटेटिव ग्रुप्स उसमें से खत्म होते हैं। ऑल एट्रीब्यूट्स आर डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की, के सारे एट्रीब्यूट्स हैं प्राइमरी की के ऊपर डिपेंडेंट है। ऑल रिलेशनल टेबल्स satisfy first normal form requirements. Some tables contain partial dependencies based on only part of the primary key, sometimes used for performance reasons but should be used with caution. Still subject to data redundancy, कि इस टेबल के अंदर पॉसिबिलिटी है कि फर्स्ट नंबर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जैसे प्राइमरी की फाइंड आउट की, तो प्राइमरी की फाइंड आउट करने में हमें जो मिली है वो बेसिकली कंपोजिट की मिली है, और कंपोजिट की जो है इट इज कंप्राइजिंग ऑफ मोर देन वन एट्रीब्यूट। तो हो सकता है इस टेबल के अंदर तो हमें दो एट्रीब्यूट्स हैं जो कि प्राइमरी की का हिस्सा है। देयर वुड हैव बीन अ पॉसिबिलिटी दैट there would have been like more than two attributes as well. Three attributes combine करके पूरे टेबल को जो है वो डिटरमाइन कर रहे हैं। And when we have a composite key in a table, it means there is a possibility of the partial dependency. And partial dependency is the issue of the second normal form. तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की अगर हम चीट शीट में जाएं, चीट शीट क्या था कि टेबुलर फॉर्मेट में जो डेटा है उसके नो रिपीटेटिंग ग्रुप्स होनी चाहिए, उसकी प्राइमरी की फाइंड आउट होनी चाहिए। एंड प्राइमरी की कैन बी फाइंड आउट by finding the dependency diagram, and dependency diagram can be constructed with the help of the functional dependency that we have seen in the previous
lecture. So first normal form, eliminate the repeating groups, identify all dependencies, एंड थर्ड आइडेंटिफाई द प्राइमरी की। तो सिंपल है, हमने इनको वैसे ही हम उस टेबल की जो स्ट्रक्चर है उसको हम देख के जो है अंदाजा लगा सकते थे कि यार इसकी प्राइमरी की कौन सी सकती है, एज इट इज अ वेरी स्मॉल टेबल कंसिस्टिंग ओनली फ्यू एट्रीब्यूट्स। अगर हमारे पास कोई ऐसा टेबल होता जिसमें हमारे पास 15 एट्रीब्यूट्स होते, हमारे पास 20 एट्रीब्यूट्स होते, सो इन दैट सिनेरियो हमें डिपेंडेंसी डायग्राम की जो सिग्निफिकेंस है वो ज्यादा उसकी इंपॉर्टेंस जो है पता चलती कि इतना बड़ा टेबल है तो इसमें प्राइमरी की फाइंड आउट करना के लिए जरूरी है कि हम फंक्शनल डिपेंडेंसीज फाइंड आउट करते पहले, एंड देन हम डिपेंडेंसी डायग्राम बनाते हैं। सो कन्वर्जन टू द सेकंड नॉर्मल फॉर्म, लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड नॉर्मल फॉर्म। So relational database design can be improved by converting the database into the second normal form. और second normal form में convert करने के लिए there are two steps. First, write each key component on a separate line. अच्छा, इसमें हम आते हैं कंपोनेंट के हवाले से। पहले तो हम ये बताओ कि जो चीट शीट के अंदर इसकी जो कंडीशंस हैं कि पहले वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए और इसके अंदर पार्शियल डिपेंडेंसीज नहीं होनी चाहिए। पार्शियल डिपेंडेंसी, आप मुझे, अगर किसी ने प्रीवियस लेक्चर अटेंड किया हो तो मुझे कोई बताएगा कि पार्शियल डिपेंडेंसी क्या है? मैं इस लेक्चर में ही बता चुका हूँ व्हाट इज द पार्शियल डिपेंडेंसी। कैन एनीबॉडी रिस्पॉन्स टू माय क्वेश्चन? व्हाट इज द पार्शियल डिपेंडेंसी? अगर आपने प्रीवियस लेक्चर अटेंड किया होगा तो बट आपको पार्शियल डिपेंडेंसीज आना चाहिए। यस सर। बताएं सर पार्शियल। को जी सर को एड़ो एट्रीब्यूट जेको नॉन प्राइमरी की ते डिपेंडेंट हुजे। दैट इज द ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी बेटा। सर सॉरी को एड़ो सॉरी एलिमेंट जेको समहाउ जेको है वो प्राइमरी की ते डिपेंडेंट हुजे, जेके टू कीज माना ब की जेके आहिनि उहे मिली करे जो सब एट्रीब्यूट ठाहिनि। सही है, बिल्कुल ठीक है। बेसिकली when we have a primary key that is comprising of more than one attribute, basically when we have a primary key that is comprising of more than two attributes, सॉरी मोर देन वन एट्रीब्यूट, यानी एक से ज्यादा उसके अंदर एट्रीब्यूट हो, तो उस प्राइमरी की को हम कहेंगे कंपोजिट की। और उस कंपोजिट की में अगर हम कहें कि कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट मींस कोई ऐसा एट्रीब्यूट जो कि प्राइमरी की का हिस्सा ना हो, इट डिपेंड्स ऑन पार्ट ऑफ द प्राइमरी की, पार्ट यानी कि पार्शियली ऑन पार्ट ऑफ द प्राइमरी की। इन दिस टेबल we say if there is any attribute जो कि या इस एम्प्लॉय नंबर या इस प्रोजेक्ट नंबर, इन दोनों में से किसी एक पे डिपेंडेंट हो, जिसको डिटरमाइन करने के लिए हमें पूरी प्राइमरी की जरूरत ना पड़े, तो हम इस चीज को कहेंगे पार्शियल डिपेंडेंसी। मींस अगर आप इसको एक लाइन में इसकी डेफिनेशन तो लिखें तो डेफिनेशन क्या होगी? when a non-prime attribute depends on the part of the primary key, it is called partial dependency. तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्जन के लिए हमारे लिए जो कंडीशन है दैट देयर शुड नॉट बी एनी पार्शियल डिपेंडेंसीज। अगर कंपोजिट की है ही नहीं, वापस हम चीट शीट के अंदर जाते हैं, देयर आर नो पार्शियल डिपेंडेंसी। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि फर्स्ट एनएफ के अंदर अवेलेबल हो, उसके अंदर पार्शियल डिपेंडेंसीज नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट एनएफ के अंदर तो हो गया। अब अगर उसके अंदर कंपोजिट की है ही नहीं, जब कंपोजिट की नहीं होगी तो पार्शियल डिपेंडेंसीज नहीं होगी। इफ देयर इज नो पार्शियल डिपेंडेंसी, इट मींस दैट
टेबल इज ऑलरेडी इन द सेकंड नॉर्मल फॉर्म, तो उसको हमें सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो ऑलरेडी सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हो जाएगा। अगर हमारे पास पार्शियल डिपेंडेंसीज है, जिस तरह के राइट नाउ इन आवर एग्जांपल दैट वी आर कंसीडरिंग, we have the partial dependency as the project name is dependent on project number and employee name, job class, charge hour is dependent on employee number. तो in that case हमें इसको कन्वर्ट करने पड़ेगा सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर, और सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए द फर्स्ट स्टेप इज राइट ईच की कंपोनेंट ऑन अ सेपरेट लाइन। ईच की कंपोनेंट मींस इस टेबल के अंदर प्रोजेक्ट नंबर हमें अलग लाइन पे लिखना है, और जो है हमारे पास एम्प्लॉय नंबर जो है दैट इज आल्सो नीड टू बी रिटन ऑन अ सेपरेट लाइन। राइट ईच की कंपोनेंट ऑन सेपरेट लाइन, देन राइट ओरिजिनल कंपोजिट की ऑन अ लास्ट लाइन। यानी कि हमें कह रहा कि ये जो कंपोनेंट है उसकी अलग एक लाइन पे लिखें, प्रोजेक्ट नंबर, एम्प्लॉय नंबर वो भी अलग लिखें, और जो जो कंपोजिट है वो लास्ट लाइन पे लिखें, यानी कि 3 लाइंस आप बनाते हैं। ठीक है। सेकंड स्टेप इज असाइन करेस्पॉन्डिंग डिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स। अब उसके जो करेस्पॉन्डिंग है वो उसके डिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स लिखते हैं। डिटरमाइन दोस एट्रीब्यूट्स दैट आर डिपेंडेंट ऑन अदर एट्रीब्यूट्स। एट दिस पॉइंट मोस्ट एनोमलीज हैव बीन एलिमिनेटेड। तो अगर हम ये कहें कि प्रोजेक्ट नंबर हमने एक अलग लाइन पे लिखा, एम्प्लॉय नंबर हमने अलग लाइन पे लिखा, और उसकी जो कंपोजिट की है हमने अलग लाइन पे लिखी, तो प्रोजेक्ट नेम जो है दैट इज डिपेंडेंट ऑन प्रोजेक्ट नंबर, तो उसको असाइन करते हैं डिपेंडेंट जो कि सेपरेट, असाइन करेस्पॉन्डिंग डिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स। एंड एम्प्लॉय नंबर में एम्प्लॉय नेम है, जॉब क्लास है, चार्ज आवर है, तो दीज 3 एट्रीब्यूट्स आर डिपेंडेंट ऑन द एम्प्लॉय नंबर, तो हम उसको जो है वो अलग लाइन पे उसको असाइन करते हैं, लिखते हैं, और जो कंपोजिट की है उसको हम लास्ट लाइन पे लिखते हैं। और जो ऐसे जो आवर्स हैं जिस तरह से जो डिपेंडेंट है, जो कि पूरी कंपोजिट की के ऊपर डिपेंडेंट है, तो हम उसको उसके कंपोजिट की के साथ लिखते हैं। अब इस तरह से हमारा जो टेबल था इनिशियली, जो कि कंप्राइजिंग ऑफ ऑन ओनली सिंगल टेबल, नाउ इट इज डिकम्पोज इनटू द 3 टेबल्स, और 3 टेबल्स के अंदर जो है हमारे पास देयर इज नो पार्शियल डिपेंडेंसी। अब पार्शियल डिपेंडेंसी हमारे पास खत्म हो गई क्योंकि इसके अंदर कंपोजिट की है ही नहीं। देयर इज नो कंपोजिट की इन दिस टेबल एज वेल। Over here, there is a composite key, but we do not have the partial dependency. So right now, we can say that all of these tables are in the second normal form. If there are, if there were not any partial dependencies, so we would have said that the previous table is already in second normal form, because there's no composite key, there's no partial dependency. There's not necessarily we can have that a table must contain a partial dependency when we have composite key. It is not necessary a requirement. ठीक है, हो सकता है पार्शियल डिपेंडेंसी हो सकता है पार्शियल डिपेंडेंसी ना हो कंपोजिट की में। अगर होगी तो हम मूव करेंगे, अगर नहीं होगी तो हम उसको एज इट इज छोड़ देंगे। नाउ in this conversion of second normal form, we can say that it must be in first and if, and it includes no partial dependencies, means no attribute is dependent on only portion of the primary key. तो second normal form हमारा complete हो गया। Now we are moving towards the third normal form. So data anomalies are created or easily eliminated by the completing the 3 steps. For the third normal form, we need to identify each new determinant. Means we need to find out new determinant. We already have the determinant. वो कौन से determinants हैं? Project number, employee number, project number, employee number in the composite form. In the third normal form, we need to identify each new determinant. For every transitive dependency, write its determinant as a primary key for the new table. The determinant will be any attribute whose value determines other values within a row. In this scenario, we can say that we need to remove the transitive dependency. And what is the transitive dependency? When A determines B and B determines C. तो B determines C को हमें इस टेबल के अंदर रिमूव करना है, क्योंकि ये भी इसके अंदर डिटर्मिनेंट है, और ये इस पे भी डिपेंडेंट है और इस पे भी डिपेंडेंट है। So when we say that when a non-prime attribute depends on non-prime attribute, in that case it is called a transitive dependency, and we need to remove that transitive dependency in order to convert that table into the third normal form.
इसको क्या कहेंगे, हमें न्यू टेबल में बनाना पड़ेगा, इसमें जॉब क्लास जो है न्यू डिटर्मिनेंट, हमें एक नया टेबल लाइन पे लिखना पड़ेगा, उसपे जो डिपेंडेंट्स है वो उसके सामने लिखने पड़ेंगे, लेकिन वो डिटर्मिनेंट जो है वो अपने ओरिजिनल टेबल के अंदर रहेगा, अलबत्ता ये वाला जो रिडंडेंट डेटा है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, दूसरा टेबल में आ जाएगा। तो राइट, आइडेंटिफाई ईच न्यू डिटर्मिनेंट, हमने न्यू डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया इन केस ऑफ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। सेकंड स्टेप, आइडेंटिफाई द डिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स, उसके करेस्पॉन्डिंग डिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स हमने फाइंड आउट किए, which contains identify attributes dependent on each determinant identified in step number 1 and identify their dependency. Name table to reflect its contents and function. Third step is remove the dependent attributes from transitive dependencies. Remove the dependent attribute. First step क्या है? Identify the new determinant, जो कि हमने किया, यहाँ पे जॉब क्लास है। दूसरा स्टेप क्या है? Assign the corresponding charge hour, उसके सामने हमने assign कर दिया, and remove the dependents फ्रॉम द ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। सिर्फ हमें डिपेंडेंट्स एट्रीब्यूट्स में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी से रिमूव करने हैं, बाकी जो डिटर्मिनेंट है यहाँ पे वैसे का वैसा ही रहेगा। Remove the dependent attributes from transitive dependencies means eliminate all dependent attributes in transitive relationship from each of the tables that have such a transitive relationship. जहां जहां भी transitive dependency हो, हर टेबल में से हमने उसके डिटर्मिनेंट निकाल के अलग अलग टेबल्स बनाने पड़ेंगे। Draw new dependency diagram to show all the tables defined from step number 1 and 3. Check new table as well as tables modified in step 3 to make sure that each table has determinant and that no table contains inappropriate dependencies. दोबारा से हमें डिपेंडेंसी डायग्राम बनाना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा, जहां से हमने जो है वो एम्प्लॉय नंबर से एम्प्लॉय नेम जॉब क्लास से जॉब क्लास उठा के एक नया डिटर्मिनेंट बनाया और वहां से चार्ज अवर को रिमूव कर दिया और यहाँ पे हमने इसको असाइन कर दिया, लेकिन जॉब क्लास जहाँ पे एग्जिस्ट करता है और डिपेंडेंसी डायग्राम बना के हमें दोबारा से चेक करना पड़ेगा कि जो है इसमें किसी किस्म की कोई भी जो है वो पार्शियल डिपेंडेंसी ना हो, इसमें किसी किस्म की कोई भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी जो है वो अवेलेबल ना हो। So in this scenario, we can say that our table that was represented in the tabular format in the previous slide, जो कि यहाँ पे अवेलेबल है, आफ्टर द कन्वर्जन इस सिंगल टेबल को नॉर्मलाइज करने के बाद हमें 4 टेबल्स मिले और इन 4 टेबल्स में से कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है, कोई भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं, ठीक है। सो एज वी कैन से दैट दिस इज नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। A table is in third normal form when both of the following are true. It is in second normal form and it contains no transitive dependencies. इसकी दो कंडीशंस हैं कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए और उसके अंदर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। अब ये तो हमारे पास नॉर्मलाइज हो गया 3NF तक, ठीक है। अब उसके कुछ और हिंट्स हैं, कुछ हेल्प आउट ट्रिक्स हैं कि improving the design. Table structures are cleared up to eliminate the troublesome initial, partial and transitive dependencies. Normalization cannot by itself be relied on to make good designs. It is valuable because its use helps eliminate the data redundancies. It doesn't mean कि हमारी डिजाइन जो है बिल्कुल बेहतरीन होगी, सिर्फ इट विल हेल्प अस आउट कि हमें डेटा रिडंडेंसीज को रिमूव करने में जो नॉर्मलाइजेशन हेल्प आउट करता है। हम डिजाइन्स को किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं, जिससे कुछ स्टेप्स हैं कि हमें प्राइमरी की जो असाइनमेंट्स हैं क्या हम उसको इंप्रूव कर सकते हैं, हम नेमिंग कन्वेंशंस जो है वो चेक कर सकते हैं। प्राइमरी की असाइनमेंट्स का मतलब ये है कि अगर ऐसी कोई प्राइमरी की है जिसके अंदर हमारे पास एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय का एड्रेस है, एम्प्लॉय का टेलीफोन नंबर, हम कहेंगे एम्प्लॉय का नाम जो है हम प्राइमरी की कर सकते हैं क्योंकि वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है, लेकिन उसमें जो क्या होगा कि हमें वो उसके टेक्सचुअल फॉर्मेट में होगी प्राइमरी की, तो हम बेहतर है कि अब एम्प्लॉय आईडी जो है वो क्रिएट करें, क्योंकि इनिशियली जब हम कहेंगे कि एम्प्लॉय जो है उसकी आईडी जो है अवेलेबल नहीं है, नॉर्मलाइजेशन करने के बाद हम उसमें प्राइमरी की के लिए एम्प्लॉय आईडी हम क्रिएट कर रहे हैं, या कोई ऐसा कॉलम जो बेहतर समझते हैं कि इसकी प्राइमरी की के लिए हो सकता है, तो हम उसको चूज कर सकते हैं, सॉरी क्रिएट कर सकते हैं इन ऑर्डर टू क्रिएट द प्राइमरी की। अब उस प्राइमरी की को हम
ऑटोमेटिक असाइनमेंट भी कर सकते हैं। ऑटोमेटिक असाइनमेंट मीन्स कि डेटाबेस के अंदर हर बार जब हमें कोई रो इंसर्ट करनी हो तो उसमें जो प्राइमरी की जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिक जनरेट हो रही हो, उसकी जो वैल्यू है वो हम क्लाइंट को असाइन ना करें कि वो वहां पे उस चीज को क्रिएट कर सके। वो हम एक ऑटो इंक्रीमेंट लगा सकते हैं। जब भी एम्प्लॉय नया क्रिएट होगा तो उसकी प्राइमरी की जो है डेटाबेस खुद ही जो है उसकी असाइन करेगा। नेमिंग कन्वेंशंस क्या है कि टेबल की जो नाम है, सॉरी टेबल के नाम या कॉलम के नाम जो है वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। अगर डेटाबेस में हमारे एम्प्लॉयज का टेबल है तो उस एम्प्लॉयज टेबल को हम ये नहीं लिखेंगे टेबल 1, डिपार्टमेंट टेबल को टेबल 2 या टेबल 3 या टेबल 4। ये जो कन्वेंशंस हैं ये समझ के बाहर होंगी। तो बेहतर ये है कि उनकी जो नेमिंग कन्वेंशन एम्प्लॉयज का टेबल है उसका नाम एम्प्लॉयज रखते हैं या ईएमपी रखते हैं। डिपार्टमेंट का टेबल है तो डीपीटी रखते हैं। स्टूडेंट्स का टेबल है तो स्टूडेंट लिखते हैं। डिफाइन एट्रीब्यूट एटॉमिसिटी, डिफाइन एट्रीब्यूट एटॉमिसिटी का मतलब ये कि हो ऐसा हो कि एट्रीब्यूट्स का जो नाम है वो एटॉमिक होने चाहिए, वो रिपीट नहीं होने चाहिए। अगर हमारे पास फैकल्टी है, अब फैकल्टी के अंदर टीचर्स हैं तो टीचर्स की के अंदर एक कॉलम है एड्रेस का। अब स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स का टेबल के अंदर कॉलम है एड्रेस का। तो वो एट्रीब्यूट जो है या कॉलम जो वो सेम हो गया, चाहे वो अलग अलग टेबल के अंदर है लेकिन वो सेम हो गया। बेहतर ये है कि उसको थोड़ा सा चेंज कर दें। अगर वो फैकल्टी के अंदर तो हम उसको ये लिखते हैं इफ डॉट एड्रेस। अगर स्टूडेंट के अंदर टेबल के अंदर उसको ये कहते हैं एस डॉट एड्रेस। तो वो हमारा जो एट्रीब्यूट एटॉमिसिटी है यानी कि इंडिविजुअलिज्म जो है वो हमारे लिए रहेगा। आइडेंटिफाई न्यू एट्रीब्यूट्स या न्यू रिलेशनशिप्स। अगर हम न्यू एट्रीब्यूट्स हो जो कि हमारे डेटाबेस को और रिफाइन कर सकते हैं और इंफॉर्मेटिव कर सकते हैं तो अ, वो कर दें। अगर नए रिलेशनशिप्स में बनाने के ऐसे कोई टेबल जिनके आपस में लिंक नहीं है लेकिन अगर हमें जरूरत पड़े कि इन टेबल्स की आपस में सर्चिंग के लिए कंबाइन किया जा सकता है तो हम उसकी प्राइमरी की फॉरेन की ऐड कर सकते हैं। इवैल्यूएट ड्राइव एट्रीब्यूट्स, जिस तरह के मैंने प्रीवियस स्लाइड में कहा था कि आपकी जो एज का एट्रीब्यूट है वो डेट ऑफ बर्थ जो है उसके थ्रू ड्राइव हो सकता है। तो हम ड्राइव एट्रीब्यूट के बारे में सोचेंगे कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि इस टेबल के अंदर ड्राइव हो रही है एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती, तो हम उसको अलग एट्रीब्यूट बना के रखते हैं, उसको डेटाबेस के अंदर स्टोर ना करें। या कोई ऐसा एट्रीब्यूट जो कोई ड्राइव हो सकता है तो हम उसको ऑन द व्यू साइड जो है मटेरियलाइज्ड व्यू में हम उसको ऐड करते हैं। टेबल के बेसिस स्ट्रक्चर के अंदर उसको ऐड ना करें क्योंकि ऑन द रन टाइम जो है वो एट्रीब्यूट जो है वो ड्राइव होगा। So normalization is accomplished by applying some formal rules either by process of synthesis or decomposition. अब ये नॉर्मलाइजेशन अगेन एक क्रिएटिव प्रोसेस है। इसके बेसिक स्टेप्स तो आपको पता चल गए लेकिन अगेन आप उसको कहाँ पे आकर आप उसको खड़ा करते हो, कौन सी प्राइमरी की चूज करते हो, कंपोजिट करो उसको ना करो, आप फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म सेकंड नॉर्मल में कन्वर्ट करो ना करो, उसको वैसे ही छोड़ दो तब भी आपका डेटाबेस बन जाएगा। तो आपके ऊपर डिपेंड कंप्लीटली जब आपके पास रिक्वायरमेंट है। अब ये तो प्रोसेस हो गया हमारा एक नॉर्मल जो कि ट्रायल एंड एरर बेसिस पे हमारे पास आ गया स्टेप्स वाइज। अब हमारे पास नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो मैथमेटिकली अवेलेबल है जिसमें हमारा दो अप्रोचेस हैं, एक सिंथेसिस अप्रोच है, एक डिकम्पोजिशन अप्रोच है। Synthesis creates a normalized database designed based on a known set of dependencies, or decomposition takes an existing database design and improves it based on a known set of dependencies. तो synthesis approach है और decomposition approach। हम synthesis approach देख लेते हैं अभी। इसका एक एल्गोरिथम है। उसका एल्गोरिथम क्या है? फाइंड आउट द फंक्शनल डिपेंडेंसीज, स्टेप नंबर 1। फाइंड आउट द क्लोजर, स्टेप नंबर 3। ग्रुपिंग ऑफ द फंक्शनल डिपेंडेंसीज ऑफ द लेफ्ट साइड, नंबर 4। कंस्ट्रक्शन ऑफ द रिलेशंस, and number 5 regrouping of the relations from EI and EJ। अब ये जो है इसी सेम नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को अगर आपने कन्वर्ट करना है 3NF के अंदर तो उसका ये पूरे का पूरा एल्गोरिथम है सिंथेसिस का। वो जो अभी हमने पढ़ा है वो क्विक वे के जो है वो उसको टेबल को देखने के साथ ही हम उसको यार ये प्राइमरी की फाइंड करो, रिपीटिंग ग्रुप्स खत्म करो, डिपेंडेंसी डायग्राम बनाओ, पार्शियल डिपेंडेंसी खत्म करो, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी खत्म करो। क्विक वे है इसको, लेकिन उसमें मिस्टेक्स के चांसेस पॉसिबिलिटी है। मिस्टेक्स तो हम नहीं नहीं कहेंगे लेकिन उसकी जो डेटाबेस की डिजाइन वो वेरिएंट हो सकती है। लेकिन ये मैथमेटिकल अप्रोच है जो कि हम अभी रिलेशनल अलजेब्रा के थ्रू, आरक्यूएल के थ्रू, फंक्शनल डिपेंडेंसीज क्लोजर के थ्रू हम करते हुए जा रहे हैं। तो पहला जो स्टेप है फाइंड आउट द फंक्शनल डिपेंडेंसीज वो हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर कर चुके हैं। और फाइंड आउट द क्लोजर
ये क्लोजर भी हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर कर चुके हैं। जो बाकी 3 स्टेप है, ग्रुपिंग, कंस्ट्रक्शन और रीग्रुपिंग, वो मिला के हमारा ये सिंथेसिस अप्रोच कंप्लीट हो जाती है। तो अगर हम प्रीवियस आज जो एग्जांपल है जो हमने लास्ट टाइम किया था इस 7 फंक्शनल डिपेंडेंसीज का, उसको अगर हम ऊपर अप्लाई करें ये एल्गोरिथम, तो उसका फंक्शनल डिपेंडेंसी क्लोजर जो है, अगर आपको याद हो, एलिमिनेट the all the elements are already in the elementary dependencies। तो इसको फर्स्ट स्टेप था कि क्लोजर का एलिमेंट्री फंक्शनल डिपेंडेंसीज में कन्वर्ट करना है। सेकंड क्या था, एलिमिनेट रिडंडेंट फंक्शनल डिपेंडेंसीज। तो विद दिस ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी प्रॉपर्टी जो हमारे पास आर्मस्ट्रांग एग्जाम्स थे, उसके थ्रू हमने इसको ऊपर क्लोजर फाइंड आउट किया था और एंड में हमारे पास ये रिजल्ट आया था, F1, F2, F3, F4, F6 और F7, ये क्लोजर फाइंड आउट किया था हमने। तो फर्स्ट जो स्टेप, स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2, ये स्टेप हम प्रीवियसली इस अप्रोच के कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर के थ्रू, जिसके बाद हमारे पास ये रिजल्ट आया। अब थर्ड स्टेप ग्रुपिंग ऑफ द फंक्शनल डिपेंडेंसीज, ये भी बहुत आसान है कि ये ग्रुपिंग करनी है बेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड, यानी कि हमारे पास ऐसे रिलेशन जिनका डिटरमिनेंट सेम है, तो उनको हमने ग्रुप ग्रुप बना देना है। तो तीसरा स्टेप है ग्रुपिंग ऑफ द फंक्शनल डिपेंडेंसी ऑफ द लेफ्ट साइड। तो E1 एक ग्रुप है जिसके अंदर हमने फंक्शनल डिपेंडेंसी F1, F2 और F3। F1 क्या है, F डिटरमाइंस N, F2 क्या है, F डिटरमाइंस P, F3 क्या है, F डिटरमाइंस PU। इन तीनों को हमने कंबाइन करके E1 के अंदर रख दिया है, और F4 P डिटरमाइंस C हमने जो है E2 ग्रुप बना दिया है, और F6 C डिटरमाइंस T हमने E3 ग्रुप बना दिया है, और F7 N डिटरमाइंस F हमने जो है E4 ग्रुप बना दिया। तो ग्रुपिंग में जो फंक्शनल डिपेंडेंसी जिनका लेफ्ट साइड जिनका डिटरमिनेंट सेम हो, उसको हमने साथ में रख देना है। F1 F2 3 कंबाइंड, F4 अलग, F6 अलग, और F7 अलग। अब द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रिलेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ रिलेशन कैसे करेंगे कि इनके जो एट्रीब्यूट्स है वो हमें यहाँ पे लिख देने। F1 के एट्रीब्यूट्स क्या है, F और N। F2 के एट्रीब्यूट्स क्या है, F और P, F हमने पहले से लिखा हुआ, और F3 के एट्रीब्यूट्स क्या है, F और PU। तो F स्टेरिक जो है वो ऑलरेडी जो है हमारे पास यहाँ पे प्राइमरी की, क्योंकि एक ही हमारा एट्रीब्यूट जो डिटरमिनेंट, एक रिलेशन हो गया हमारा यहाँ पे। दूसरा रिलेशन हो गया F और P डिटरमाइन C, तो P भी अवेलेबल है और C भी अवेलेबल है। फिर R3 C डिटरमाइंस T, तो C प्राइमरी की ये स्टार है, ये जो है बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है प्राइमरी की को, तो C कमा T। और R4 जो है N और F। तो ये चार टेबल्स या चार रिलेशंस जो है हमारे ये कंस्ट्रक्ट हो गए। लास्ट स्टेप क्या है, रीग्रुपिंग ऑफ द रिलेशंस फ्रॉम EI एंड EJ। रीग्रुपिंग हम इसको कहेंगे कोई ऐसे एट्रीब्यूट्स जो कि एक से ज्यादा टेबल्स में सेम है, तो हम उस टेबल को खत्म कर देंगे या रीग्रुप कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल ये जो टेबल है रिलेशन 4 का, इस टेबल के अंदर हमारे पास एट्रीब्यूट्स N और F। तो N और F जो है हमारे पास इस रिलेशन 1 के अंदर भी अवेलेबल है। इस R4 की हमें जरूरत नहीं है। तो एंड में हमारे पास रिलेशंस कौन से बचेंगे, R1 F1 PU, R2 PC और R3 CT। ये हमारे पास जो है वो रिलेशंस इसके जो कंस्ट्रक्ट हो गए। अब आपने देखा होगा कि हमें नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है, वो जो हमने उसके जो स्टेप्स फॉलो किए थे वो भी बड़े आसान है, और ये जो सिंथेसिस जो अप्रोच हमने पढ़ी मैथमेटिकल फॉर्मेट में, ये भी बहुत आसान है कि फंक्शनल डिपेंडेंसीज फाइंड आउट करनी है, क्लोजर करनी है। बाकी ये 3 स्टेप आपने देख लिए कि एक एक लाइन के ये स्टेप्स है। ठीक है गाइस, तो हम जो है इसको जो है वो लेक्चर को यहाँ तक जो है वो एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है हम मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसीज को चेक करेंगे, उसको बारे में पढ़ेंगे हम जो है वो फोर्थ नॉर्मल फॉर्म को हम देखेंगे, और जो है हम जो है वो जी नॉर्मलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी बेटा, हेलो। अगर आपको आज के लेक्चर के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।